हम प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर के समय के लिए जो उसने हमें आज दिया कि आज फिर से एक बार हम उसके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा गलतियों उसका 4 अध्याय, उसके 8 पद से हम देखेंगे उसके 20 पद तक। गलतियों 4 अध्याय उसके 8 से 20। Dear friends, today we want to see and study from the book of Galatians chapter 4 verses from 8 to 20। पर इसके पहले कि हम बाइबल का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस नए समय के लिए, प्रभु शाम के लिए, कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो, ताकि हम आपके गूढ़ भेदों को प्रभु अनुभव से जाने और आपके अनुग्रह और प्रेम में बढ़ने वाले बन सकें। आज के वचन पर आपके आशीष हो, आप इसके द्वारा हमसे बातचीत करें। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो वचन की सेवकाई में आज भाग लेते हैं, हे प्रभु हर एक से बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम आज बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने जो अध्ययन करा था, हमने कल कई बातों पर गौर करा और हमने ये देखा कि यीशु मसीह में हम सब एक हैं। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के हम संगी वारिस हैं। फिर हमने इस बात को देखा कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। और फिर हमने देखा कि हमें वो अधिकार दिया गया कि हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं। Yesterday we are looking upon these very important things that we saw that in Christ we are united. Our identity become one identity, and that is we belong to Jesus Christ. And then we also saw that we are the co-heirs with Christ. All the spiritual blessings in heavenly realms and even this world also, when we talk about our spiritual life, it belongs to Christ, and in Christ it belongs to us. Then we also saw that Jesus was born at the fulfillment of time. And then we also saw that we have a great privilege to call the eternal God as our Father. Now we'll look today beyond that, after that, what is written here. The first thing that I read here, that is found in Galatians chapter 4 verse 8, where it is says, "Formerly when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods." ये लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। And this is a very obvious in the whole world, in a country also. Unknowingly, especially when St. Paul was in Athens and he was visiting their town, he was going around and around on their way, and then he started speaking to them. He said, people of Athens, I perceive, I understand that you are righteous people, you are religious people, because everywhere I went in your town I saw a lot of places with many idols and many places of your worship, altars also. But among those altars I saw an altar where it was written, for the unknown God. एक ऐसी वेदी मैंने देखी जहाँ लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और मैं उसी का प्रचार तुम्हारे बीच में कर रहा हूँ। So there are many people in the world today who worship. There's no doubt about their spiritual life. They are religious people, and they are so devout people that sometimes they are more than most of us in their spiritual life. They are generous, and they are also holy people. They are forgiving people. They are kind-hearted people, and they are the one who serves a lot of people who need the help of many people like us and you also. But Paul says here, before or formerly, when I did not know God, when you did not know God, without knowing God, you were enslaved, you
worship God those who were not gods, because you perceived, you thought that they are gods or goddesses, and you regularly worshipped them, and you obeyed all the traditions. You were abiding all the traditions, and that was a peace for your life, your contentment for your life. You are contented about that. But when you came to Christ, thing changed, everything became changed. और ये सत्य है मित्रों, आज इसके लिए सुसमाचार की आवश्यकता है, क्योंकि जो अज्ञानता है, जो लोगों के मन के अंदर जो भ्रम है, चाहे उसको हम प्रकट करें ना करें, लेकिन जब हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारे बहुत से लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, बहुत सी बातें ऐसे करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चूँकि कथाएं बताई गई हैं, नियम बताए गए हैं, परिपाटियाँ बताई गई हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा, तो हम उनको मानते हैं। बहुत से लोग पूछेंगे भाई ये क्यों करते हैं, सब ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तक करा जा रहा है तो हम भी कर रहे हैं। मान्यता है, मान्यताएं हैं। वी डू बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस, एंड इट इज ऑब्वियस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट एवरीवेयर. Lot of things are there. You talk it about social traditions, religious traditions, or political traditions, or any traditions of that land. It prevails today because of the reason that we are wandering and try to please everyone and each one, because we think that by doing that we will get something benefit for our spiritual life and for our day-to-day life. और यहाँ पर पौलुस इस बात को साफ साफ कहता है कि पहले तुम जो परमेश्वर के पास नहीं थे, जब उसको नहीं जानते थे, तो उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है. And you were enslaved of anyone, you were enslaved up to those that by nature are not gods. And ये हमें सीखने की आवश्यकता है. अब दूसरी बात हम देखते हैं, यहाँ पर 9 पद में लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, पर परमेश्वर ने तुमको पहचाना, जो उस निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो. अब पौलुस यहाँ पर कहता है, अब जब तुम मसीह में आ गए, अब तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया, तुमने सच्चाई को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, अब तुम वापस उनकी तरफ क्यों मुड़ रहे हो. इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है. Once a person comes to Christ, he or she has decided to follow the living God. Jesus Christ is the living Savior. He came in the fulfillment of time, and He died on the cross of Calvary, and anyone who believes in Him, trusts in Him, his life is saved from the mortality, from death to life. He has crossed over from death to life. Now life, his is apportionment. Life has become his portion, and now anything and everything that is not eternal or of worldly or of temporal value become a kind of secondary value to him, because now he has or she has understood and comprehended the eternal reality, that is Lord Jesus Christ. और इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें दुनिया के तरफ मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया की बातों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, जिनका औचित्य थोड़े समय का है, जो थोड़े समय के लिए मूल्य रखते हैं, उनकी तरफ हमें देखना तो है सबकी तरफ, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ ना रहे जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू, जिनकी उपयोगिता थोड़े समय के लिए. हमें उससे आगे देखने की आवश्यकता है. वी नीड टू लुक बियॉन्ड द हॉराइजन ऑफ दिस मॉर्टलिटी. हमें परमेश्वर की तरफ देखने की आवश्यकता. पौलुस ये कहता है, मैं उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो तुम, जिनके द्वारा तुम दोबारा दास होना चाहते हो. क्या तुम उनके दोबारा दास होना चाहते हो? पहले उनके गुलाम थे, अब तुमने अपना ध्यान यीशु पर लगा लिया, उसी पर ध्यान केंद्रित करो. और आगे लिखा इसके आगे, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और पर्वों को मानते हो. मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ
कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। हमारे बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो मान्यताओं के कायल हैं, और उन मान्यताओं में यहाँ पौलुस कहते हैं कि नियत दिन है, नियत महीने है, और नियत साल है, नियत समय है और वर्ष है। क्या अभी भी हम उन बातों को मानते चले आते हैं? हमारे बहुत से समाज में, मसीह समाज में लोग हैं जो ऐसा करते हैं। शहरों में तो कम, लेकिन गांव में ज़्यादा। हमारी जो परिपाटियां हैं, हमारे जो परिवार के नियम है, वो सांसारिक बातों के साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनमें अपने आप को पाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चले जाते हैं। पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं करने की आवश्यकता, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। मित्रों, सचमुच में गौर करने की आवश्यकता है, सचमुच में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें अपना ध्यान उन बातों पर केंद्रित करना है जिनका मूल्य अनंतकालीन है और परमेश्वर जिनके द्वारा महिमा प्राप्त करता है। तीसरी बात यहाँ पर पौलुस कहते हैं 12 पद में, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, मेरे समान हो जाओ। और क्या कहता है कि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुना। पौलुस ये कहता है कि मित्रों, तुम मेरे को देखो, मेरा जीवन एक निर्बल जीवन है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो शारीरिक बातें है ना, कुछ कहते हैं कि पौलुस की आंखों से हमेशा आंसू बहता था क्योंकि उसने प्रभु को देखा था दमिश्क के मार्ग में। और फिर बहुत लोग कहते कि वो लंगड़ा के चलते थे क्योंकि कई बार उनको कोड़ों से मारा गया 5 बार, और एक वो पत्थरवा किया गया तो उनके घुटनों में तकलीफ थी, पैरों में तकलीफ थी, वो लंगड़ा के चलते थे। और कुछ और तकलीफ, क्योंकि वो जगह जगह जाते थे, वहाँ का पानी पीते थे, उनको पेट की तकलीफ रहती थी। तो कहता है कि मेरा शरीर जो है ना, मेरा व्यक्तित्व है, तुम में से बहुतों के लिए एक प्रकार से परीक्षा का कारण है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे स्वीकार करा। संत पौलुस अपने बारे में यहाँ पर कहते हैं, मैं चाहूँगा हम थोड़ा और देखें पौलुस के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ देखें इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से 4 पद तक क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पहले पद से, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता। अभी तो अपने आत्मिक जीवन के बारे में कहते हैं कि पौलुस किस प्रकार से यीशु मसीह का बंदी है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है, इसलिए उसने वो सेवा करी है, और ख़ास करके गलतियों के अंदर उसने सुसमाचार का प्रचार करा। अगर आप एक जगह और देखें जहाँ पौलुस अपने बारे में और कुछ बताते हैं, मैं चाहूँगा इसको आप देखें और इसको मेरे साथ आप पढ़ें। मैं चाहूँगा आप निकालें मेरे साथ फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, हम 3 पद से देखेंगे। लेट अस लुक लिटिल बिट अबाउट सेंट पॉल बाय रीडिंग फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 3 ऑनवर्ड। यहाँ लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं, हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया के सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अब यहाँ पौलुस कहता है उसके जीवन में सच्चाइयाँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर, आँखों से तकलीफ, पेट की तकलीफ, चलने में तकलीफ, क्योंकि उसके जीवन के अंदर ये घटनाएं घटी उस अंतराल में जब वो मिशनरी यात्रा करते थे, प्रचार करते थे। लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि इसके बावजूद तो मेरे जीवन का जो सिक्के का जो दूसरा पहलू ये है कि मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है और मैं शरीर पर घमंड नहीं करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ तुम मेरी सी चाल चल, कमजोरी में, परेशानियों में,
तंगी में, दुख में, बीमारी में तुम्हें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। इफ़ यू आर फॉलोइंग क्राइस्ट फेथफुली, सो यू नीड नॉट टू बी होपलेस, यू नीड नॉट टू लीव योर फेथ, because you watch my life in spite of everything that I have gone through or I am going through, I always trust Christ. मैं हमेशा का भरोसा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जो मेरे लिए लाभ की थी उन सभी को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। I have counted, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. और इस बात को जब हम समझ जाते हैं कि जो मेरे लिए लाभ की थी मैंने मसीह के कारण उनको हानि समझ लिया, हम पौलुस के जीवन को अपने सामने रख सकते अपने सामने और उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और यही पाठ आज का है कि अपने जीवन में हम अपने जीवन के उन बातों पर गौर करें कि जहाँ हमारी कमियाँ हैं, घटियाँ हैं। और कलीसिया में मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सी कमियाँ घटियाँ पाई जाती हैं। कई बार हम अपने कमियों और घटियों को महसूस नहीं करते और दूसरों की गलतियों को देखते हैं, दूसरों की कमियों को देखते हैं और उनको उछालना चाहते हैं। पौलुस कहता है कि मुझे देखो, मेरे अंदर बहुत सी सारी कमियां हैं, बीमारी, तकलीफ हैं, लेकिन इन सब को मैंने एक तरफ रखा है। और जो सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मैं इन सारी बातों को यीशु मसीह के कारण जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं हानि समझता हूँ, ताकि मैं किसी न किसी प्रकार से मसीह के अंदर बढ़ता चला जाऊँ, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ। और अगर ये बात हम समझ जाए मित्रों, तो मसीह को समझना हमारे लिए कोई बड़ी कठिनाई की बात नहीं होगी। हम उसको पहचानते चले जाएंगे कि हमें इन तमाम बातों को जिससे हम उलझन में पड़ते हैं, जो हमें उलझाती हैं। आज बहुत सारी बातें कलीसिया के अंदर हम में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता और हम सोचते हैं कि भाई ये असंभव है, या अगला जिसको हम देख रहे हैं जो हमारे अगुए हैं उनके जीवन में मुझे लगता है ये कमियां घटियां हैं, तो हम सवाल पूछते भाई क्यों है। लेकिन हम उनके चप्पल को पहने, उनके जूतों पे पहन के चल के देख हम महसूस करेंगे कि भाई उनके जीवन में जो एक क्राइसिस है, कठिनाई है, उसके कारण यह है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रभु में आगे बढ़ना। और हमें इस बात को जानने और समझने और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, समटाइम वी लुक पीपल एंड वी फेल। Why you look the person, look unto Jesus। वो खुद कहते हैं, पौलुस अगर उस पत्री का लेखक है जिसका पत्री का नाम है इब्रानी की पत्री, तो उसके 12 अध्याय के 1-2 पद में कहते हैं कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहो। हमें अपने जीवन के सफ़र में अपने जीवन की कमियों को या दूसरों के जीवन की कमियों को अपना पैरामीटर नहीं बनाना है, तो किसको पैरामीटर बनाना है? प्रभु यीशु मसीह को। उसको देखने की आवश्यकता, उसको ताकते रहने की आवश्यकता है। जो हमारे जीवन को संभालता है और हमारे जीवन को अंत तक संभालेगा और हमारे जीवन के नैया को यहाँ से पार भी लगाएगा, वही है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। वो हमें इस संसार में आज संभालता है और इस संसार रूपी क्षितिज के उस पार भी हमें संभालेगा, क्योंकि उसने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत से रहने के स्थान है। उसको हमारी चिंता आज के जीवन की चिंता है और उसको हमारी चिंता इस जीवन के पार भी है, क्योंकि वो यहाँ का प्रभु भी है और वहाँ का प्रभु भी है। वो आदि है और वो अंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। उसको किसी ने तो बनाया, वो स्वयंभू परमेश्वर है, वो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है। सारे तारे, सारे नक्षत्र और जितने उपग्रह ग्रह हैं उसने बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं और उनके नाम वो जानता है, उनको नाम लेकर बुलाता है। इसलिए अगर हम उसके ऊपर अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आधारित हो जाते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमें ना संभाले। तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं जो हमने देखा, पर तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अब इसके बावजूद सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता, पौलुस ने ऐसा करा, शरीर में तकलीफ है, परेशानी, फिर भी वचन को सुनाने के लिए वो डरा नहीं। इसलिए हम भी समय असमय तैयार रहते हैं। जब से प्रभु को जीवन दिया है, करीब 45 साल हो गए, प्रभु की सेवा में आ गए और आज तक प्रभु आगे बढ़ा रहा।
कभी भी ये मन में नहीं आया कि सेवा को छोड़ दो। हाँ, एक बार आया था, जब मैं बहुत पहले की बात है, राजस्थान में घूम रहा था, रेगिस्तान में। एक दिन जब हम वापस जा रहे थे मिशन फील्ड में होकर के अपने सेंटर में जा रहे थे, तो साइकिल चला रहे थे हम, साइकिल तो चला के साइकिल को ठेल रहे थे क्योंकि रेत और धूप पड़ रही थी, करीब 3-4 बजे का समय होगा। तो मन में समय आया कि प्रभु, मन में ये बात आई कि प्रभु यहाँ पर कहाँ मुझे ले आए, मैं वापस जाके और पढ़ाई करूँगा। तो प्रभु ने कहा ये तुम्हारी जगह, इसे बने रहो। और आज 44-45 साल हो गए, प्रभु ने नहीं छोड़ा। तो तमाम तकलीफ़ों के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद उस सेवा काय में प्रभु ने बनाए रखा, आज भी बने और आगे भी बने रहेंगे। ये कठिनाइयाँ, ये गलतफहमियाँ, ये तमाम बातें जो खिलाफत में होती है, ये पक्ष में होती हैं, इन सब के द्वारा मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ और आपको भी नहीं हटना। पौलुस कहता है इन सब के बावजूद मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। ये लिखा है, परंतु तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारे परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना। विश्वास लोग देखकर सोचते थे भाई कैसे व्यक्ति है, इसकी आँख से तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, चलने में परेशानी है और दर्द भी हो शरीर में। पौलुस ने कहा कि मेरी शारीरिक दशा तुम में से बहुतों के लिए परीक्षा का कारण थी, परंतु तुमने उसको तुच्छ नहीं जाना, ना उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। और यही होता है। आज भी बहुत से लोग जब हमसे मिलते हैं तो सम्मान के साथ मिलते हैं, आदर के साथ मिलते हैं, और वो इज्जत सम्मान देते हैं कि वो जानते हैं। बहुत से लोग मुझे 35-40 साल से यहाँ पर जानते हैं, सेवका में जो हैं और जो लीडर्स हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय से देखा, जाना है जब मैंने सेवकाई की शुरुआत करी थी। कई लोग आज बुजुर्ग हैं यहाँ पर, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है, अरे विश्वास भाई कैसे हैं आप, कैसे सेवकाई कर रहे हैं। मेरे सेमिनरी के मेरे साथ पढ़ने वाले जो 79 से 82 तक मेरे साथ पढ़ते रहे, आज वही सम्मान आए, वही इज्जत है जो उस समय थी, कि वो जानते हैं कि ईमानदारी से सेवकाई की जा रही है। कठिनाइयाँ रही, परेशानियाँ रही, बहुत सारी बातें रही जो तब रही, आज भी आगे भी रहेंगी, लेकिन वो इस बात को जानती, इस व्यक्ति ने प्रभु की सेवकाई करने को नहीं छोड़ा। जब मैं दिल्ली आ रहा था, इस समय की बात मैं कर रहा हूँ, जब एपोस्टल चर्च मेथोडिस्ट चर्च में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, एक बहुत बड़े लीडर ने दिल्ली में रहते हैं, भाई साहब मैं एक दिन आपके चर्च आऊँगा और आपके बारे में कुछ कविता बोलूँगा। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी महिमा नहीं होनी चाहिए, प्रभु की महिमा करिए। वो आज भी सेवकाई में है और एक बड़ी संस्था के वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करिए, ये सेवकाई मैं अपने आप से थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सी कमियां घटियां हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ प्रभु की कृपा से, उसकी दया से, और करता रहूँगा अंत तक। इससे मुंह मोड़ना या इसको छोड़ना तो सवाल नहीं उठता। अरे हमारे लिए होने की आवश्यकता। अगर प्रभु ने बुलाई है, प्रभु ने बुलाहट दी है, इफ द लॉर्ड हैज कॉल्ड मी इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड सिचुएशन, आई विल अबाइड इन हिम एंड आई विल कंटिन्यू द मिनिस्ट्री। The place may be different, the ministry that we do may be different, and I have done a lot of work by the grace of God in various places, and even today we are doing, and as well as you are doing. Let us continue, because we are serving His eternal cause and not the cause of this world which is temporal. 15 पद में कहते हैं, वह तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया, मैं तुम्हारा गवाह हूँ, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे देते। अब इतने लोग उसको प्यार करते थे कि पौलुस के जीवन को देखा था, अब पौलुस के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। अब पौलुस यही तो कहता, जब हमारा रेपो, हमारी गवाही लोगों के सामने, और उसके साथ ही अब इस बात को भी जाने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गवाही को बदनाम करना चाहते हैं, आपकी गवाही को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो आपकी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो जानते हैं कि ये दिल से ऐसा नहीं है, इनके जीवन में ये बातें नहीं पाई जाती, वो समझते हैं। और कई बार लोगों ने यही बात कही है कि आप बढ़ते जाइए प्रभु का काम करते हैं, हम जानते हैं कि आप कौन है और क्या करते हैं। और आपके लिए भी यही बात है, अगर आप सच्चाई से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो चाहे थोड़े से लोग आपको कुछ बोले या आपको डिस्करेज करे, आपके सामने बाधा उत्पन्न करे, रोड़े उत्पन्न करे, आप उसको लांघ कर आगे बढ़ते जाइए। अंततः प्रभु आपके साथ है,
प्रभु आपको संभालता है और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। चौथी बात, 19 पद, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा से। अब ये पौलुस के बोझ का वर्णन। पौलुस ने पहली और दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर उसने कलीसियाओं की स्थापना करी। चाहे हम इफिसुस की बात करें, कुरिन्थ की बात करें, गलतिया की बात करें, फिलिपी की बात करें, कुलसी की बात करें, हम कहीं की भी बात करें, रोम की बात करें, उसने कलीसिया की स्थापना करी और उन कलीसिया का बोझ पौलुस को हमेशा दबाए रखती थी। मैं पढ़ना चाहूँगा कुछ पदों को जहाँ पर पौलुस इस बोझ का वर्णन करता। अगर आप देखें 2 कुरिन्थी 11 अध्याय, वो पौलुस इस बोझ का वर्णन करता। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके साथ 2 कुरिन्थी 11 अध्याय जो पौलुस खुद लिखते हैं, उसके 27 पद से। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस खुद लिख रहे हैं कलीसिया का बोझ, और यहाँ यही तो लिखते हैं। वो कहते हैं कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। जो सच्चा प्रचारक है, सच्चा मिशनरी है, सच्चा पासबान है, वो अपने लोगों के लिए आत्मिक रूप से दुख उठाते हैं, लोगों के लिए उसको चिंता होती है। और यही बात मित्रों मैं आपको कहना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि संदर्भ है मैं कहना चाहता हूँ कि आप से हर एक के लिए, नाम लेकर तो नहीं क्योंकि नाम नहीं जानता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर दिन प्रार्थना करता हूँ मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में, और ऐसे भी कि परमेश्वर एपोस्टल चर्च के हर एक परिवार को आशीष दें। हर एक परिवार के अंदर जितने बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे, प्रभु आशीष दें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब हम स्वर्ग में होंगे प्रभु आपको बता देगा। ये सच्चाई है, सच्चाई है। यही तो पासबानी की खिदमत है कि ना केवल सुसमाचार प्रचार पुलपिट से करना, ना केवल आपके घर में विजिट करना, आपके लिए प्रार्थना करना, आपके उन कार्यों को कर देना जिसके लिए हमें बुलाया गया है, लेकिन सबसे बढ़कर जिसको आप नहीं देख सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना। ऐसे तो आप कहते हैं पादी साहब प्रार्थना करो, इसलिए आप कहते हैं पादी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो। और वो हमारी वो जिम्मेदारी है जो याजकीय जिम्मेदारी है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक के 4 अध्याय के 14 से 16 पद में लिखा है कि वो हमारा महायाजक है जो हमारे आज भी स्वर्गीय स्थान में प्रार्थना करता है। तो आप इस बात को जाने कि जो आपका याजक है कलीसिया का, वो आपके पासबान है और उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, जो की जाती है। जो बीमारियाँ तकलीफ आती हैं, परेशानी आती हैं, सब प्रार्थना करते, लेकिन अगर अपने पादी साहब को बोला है, उन्होंने प्रार्थना करी है और आप जानते कि प्रभु ने आपको क्या प्रतिफल दिया। इट इज देयर एज ए शेपर्ड, द पास्टर प्रेज फॉर यू, एंड दिस इज नॉट टू शेयर इन पब्लिक, दैट इज आवर सीक्रेट मिनिस्ट्री, टू प्रे फॉर ईच फैमिली so that God may take care of you, especially during this last 4 months that has passed by, and some of the month may come again. I mean, another 2-3 months, we don't know. Your shepherd upholds you in his prayer, and this is there. This is there. Cannot be ruled out. In the heavenly realm, it is there. He watches. वो देखता है, वो जानता है। पौलुस यही काम तो करता है। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, हे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। अच्छा तो यह होती कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूँ, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ।
इन सब के बावजूद कलीसिया के अंदर परेशानियां पाएगी। तो पौलुस कहता है कि मैं इतना करता हूं, मेरे अंदर ये बोझ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में ये परेशानियां हैं दुनिया के। अगर आप कुरिन्थ के पहली पत्री को देखें तो कुरिन्थ के कलीसिया के अंदर कितनी बातें पाएगी जिनका अध्ययन हम हर संडे को करते हैं। तो ये पौलुस के जीवन में सेवा पाएगी। पौलुस ने इस बात को करी और आज भी ये सेवा कलीसिया के लिए। मित्रों, आप सब जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के इंग्लिश कांग्रीगेशन, हिंदी कांग्रीगेशन या नेपाली कांग्रीगेशन के सदस्यगण हैं, इस बात को मान के चलिए कि हम पासबान के रूप में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारी दुआ में इस बात को महसूस करें ना करें, प्रभु कराएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, कम से कम 5 मिनट। और आप करते मैं जानता हूँ, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो भी करें। तो यही तो हमारी आत्मिक सेवा है। इफिसियों के 6 अध्याय के 18 पद में पौलुस कहते हैं, और इसीलिए आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना, मैं इस पद को पढ़ना चाहूँगा जहाँ इफिसियों का 6वां अध्याय पौलुस यहाँ क्या कहता है अपने विश्वासियों से, कि प्रार्थना करना दूसरों के लिए एक हमारी वो सेवा है जो प्रभु ने हमें दी है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके 18 पद को देखिए क्या लिखा। इफिसियों 6:18, जहाँ वो कहता है कि आत्मा के हथियारों में एक ये है, यहाँ लिखा है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हम एक मलयुद्ध के अनुभव में है, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना। दुनिया की बातें चलती रहेंगी, गलत फहमियाँ अफवाहें उठती रहेंगे। वो प्रभु के लिए उठी, प्रभु के लिए हुआ, तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो सूखी डालियाँ हैं। वो जो हरी डाली है, जो हरा पेड़ है, उसके लिए लोगों ने बात करी, तो आज भी हो रही है। और इन ऐसे लोगों की कमी कभी नहीं समाज में रही है। लेकिन उनको पूछिए, क्या इस ऐसा करने के बाद उनके मन में शांति है? मैं आपको चैलेंज दूंगा, क्यों कहेंगे कि नहीं शांति तो नहीं है साहब, क्योंकि हमने ऐसे आरोप लगा दिए, ऐसे बोल दिया। प्रभु के लिए बहुत बातें बोली गई, पौलुस के लिए बोली गई, पतरस के लिए बोली गई, तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक बड़ी बात हुई है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को दुआ में उठाना। हमें सोचता हूँ कि ये आज का जो पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Dear friends, I understand that this lesson today, as we have seen these 4 points in Galatians chapter 4 verses 8 to 20, will be a guideline for our lives. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज शाम को प्रभु आपने हमसे बातचीत करी है, और हम चाहते प्रभु के वचन के आशीष हमारे जीवन के अंदर बनी रहे प्रभु, और हम आप में बढ़ते चले जाएं। इस कलीसिया पर आपके आशीष हो प्रभु, एक एक जन पर आपके आशीष हो प्रभु जी। एक एक परिवार को संभाले, एक एक बुजुर्ग को संभाले, एक एक माँ बाप को संभाले, एक एक जवान को संभाले, एक एक महिला को संभाले प्रभु, एक एक बच्चों को संभाले। कलीसिया की रक्षा रखवाली करो ये प्रभु। ये कलीसिया आपकी है प्रभु, ये आपके संत लोग हैं प्रभु। एक दिन हम सब आपके सामने खड़े होंगे और अनंत काल तक प्रभु आपकी आराधना करते रहेंगे। ऐसी अनुभूति आज हमें दीजिए। आज के वचन के पाठ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि जो बीज आज हमारे हृदय के रूप में बोया गया, आत्मिक बीज प्रभु, वो व्यर्थ ना जाए, पर फलवंत ही तो उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, few announcement. As I always say that this Bible study will continue, and nowadays we are studying the epistle of St. Paul to the church at Galatia, और गलतियों की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें बने रहें हमारे साथ। हमारा ऑफिशियल समय तो 7:30 बजे, लेकिन जो समय आपको मिलता है, कल मैं देख रहा था कि रात को 9-10 बजे तक 11 बजे तक आप अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि रिकॉर्डेड है और लिंक है। आप कभी भी खोल के जब खोलते हैं इसका पूरा अध्ययन करिए, पूरा इसको देखिए और आपको आशीष मिलेगी। हम प्रार्थना करें हमारे तमाम देश के लोगों के लिए, खासकर जो हमारे देश के अगुवे हैं, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs, हमारे MLAs, हमारी सेना के लोग, हमारे पुलिस के लोग, प्रभु उन पर अनुग्रह करें, ताकि उनके अगुवाई में
उनके संरक्षण में देश में तरक्की हो और इस कठिन दिनों में हम देश में बढ़ते जाएं और खुशहाल रहें, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बहुत से लोग हैं इन दिनों में जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, जिनको आधी सैलरी मिल रही है, जिनको VRS दिया गया है, उनके आगे 1-2 साल के बाद भविष्य में अंधकार है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु उनकी मदद करें। खास करके ऐसे लोग हमारे चर्च में हैं, हम प्रार्थना करें प्रभु उनकी सहायता करें। अगर आप जो हमारे चर्च के लोग हैं, अगर आप में से किसी के पास घर में राशन नहीं है तो आप आइए चर्च में। मैं यहाँ बैठता हूँ ऑफिस के अंदर हर दिन सुबह 10:30 से शाम को 6:30 तक या 5:30 तक, और हम आपकी मदद करेंगे जो भी हम कर सके राशन के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके जो ड्यूज़ हैं, चर्च फंड है या टाइट आप देना चाहते हैं या संडे ऑफरिंग है, उसको आप चर्च में लाइए। चर्च ऑफिस खुल रहा है, रोज़ खुली रहती है। वीकडेज़ में समय वही है 10:30 सुबह से लेकर शाम को 5:30 तक। आप उनको जमा करिए और रसीद ले लीजिए। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से चर्च की फाइनेंस की हालत बिल्कुल ठीक है, कहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पहले के समान चूँकि लोग नहीं आ रहे, चर्च बंद है पिछले 4 महीनों से, रेगुलर हमारे यहाँ जो आराधनाएँ करते थे कलीसिया वो नहीं आ रही है, तो कुछ तो कमी जरूर हुई है। लेकिन प्रभु की दया से हमारे हर आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और हमारा विश्वास प्रभु पर है, लोगों पर नहीं है। क्योंकि लोग और मैं और आप क्या चलाएंगे चर्च को? प्रभु चलाता है, वो चलाता है। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर भी, पौलुस कहते हैं, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक घटी की उम्र को पूरी करेगा। तो हम उस प्रभु पर विश्वास करते, जिसने कहा, भजन 34:10 में लिखा है, साम 34:10, कि क्या जवान सिंह भूखे रह सकते हैं? भूखे रहेंगे, लेकिन जो मेरे डरवैये हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनको कभी किसी भली वस्तु घटी ना होगी। तो प्रभु की इसी वचन के आधार पर हमें संभालता है, और नहीं तो आप परख कर देख लीजिए, वो संभालता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने जो आपके ड्यूज़ हैं उसको देते रहें, और इस प्रकार से कलीसिया का काम चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी तक उसने संभाला, आगे भी संभालेगा, वो विश्वास योग्य है। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे एक DSS के लिए प्रार्थना करें, हमारे एक पासबानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के लेटी के लिए प्रार्थना करें, WCS के बहनों के लिए प्रार्थना करें, MYF के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, और हम प्रार्थना करें पूरे MCI के लिए। इन कठिन दिनों में प्रभु हमारी सहायता करें, इस कठिन दिनों में प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। आइए हम धन्यवाद दें और आज के बाइबल अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी है। हमने जो कुछ सीखा प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, हमारे कलीसिया पर, हमारे कलीसिया के एक एक परिवार पर, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस पर, हमारे देश पर आपकी कृपा दया बनी रहे। प्रभु जी आप हमें संभालें, जहाँ बाढ़ें आ रही प्रभु जी आप लोगों को संभालें, बरसात रुकें प्रभु, ताकि लोग शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। और जो लोग इनकी सहायता करते हैं उन्हें आशीष दें प्रभु जी। जहाँ सूखा पड़ा है उन पर भी अनुग्रह प्रभु, और जहाँ पैंडेमिक की वजह से लोग परेशान हैं, दुखी प्रभु, उन पर छुएं चंगाए दें, हमें सुरक्षित रखें। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की हिफाज़त, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ, लेट हिज पीस बी योर पोर्शन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। सबको शुभ रात्रि, जय मसीह की। धन्यवाद।